Pranam everyone, how are you all? Hope you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, we are back again with another video. But before starting, we all have to recite the shloka. So all of you, please ready for the shloka. Let's start. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव Om Shanti Shanti Shanti. Hello everyone. Chaliye, in the previous video we have already started our third chapter, that is Coming of the British and Revolt of 1857. In that we have already discussed about the coming of the British. That means कि British जो थे वो इंडिया में कब आए. They came to India in 1600 CE, Common Era. 1600 Common Era या 1600 AD you can also say. में वो इंडिया में आए as a merchants, as traders. They came to India. Slowly they started controlling India. First of all, they controlled the Bengal with the Battle of Plassey and Battle of Buxar. After winning the Battle of Buxar, the Bengal was totally under the control of Britishers. So now after that they have started many new policies such as डिवाइड एंड रूल. तो उनकी ऐसी पॉलिसी थी जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी कंटिन्यू थी. दे नेवर एंड अप विद दैट पॉलिसी. अपार्ट फ्रॉम दैट they have started that doctrine of lapse, which was started by Lord Dalhousie. Yes, Lord Dalhousie ने start की थी doctrine of lapse. Another policy was subsidiary alliance, which was started by Lord Richard Wellesley. So ये उनकी कुछ policies थी जो उन्होंने इंडियंस के अगेंस्ट स्टार्ट की थी टू कैप्चर द मोर पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कनकर करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए जो उन्होंने स्टार्ट की थी, ये उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी. Now in this video we will discuss about how they exploit the Indians and how the revolt of 1857 was started and ended. We will do it in very short. Okay, so our next topic is exploitation of Indians by the British. As we have already discussed that after the Battle of Plassey and Battle of Buxar, बंगाल was now totally under the control of Britishers. बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था. उसके बाद उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की हेल्प से काफ़ी सारे रूलर्स को अपने अंडर कर लिया था. एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स they occupied many small kingdoms of India. Even they were also trying to capture many other kingdoms. So slowly they started exploiting the Indians of these regions. जो रीजन उनके कंट्रोल में आ चुके थे, उन रीजन्स में उन्होंने पहले इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड इट विद फार्मर्स. सबसे पहले उन्होंने शुरुआत फार्मर्स से की. They were exploiting everyone, but more farmers than others. See, here you have given how they exploit the farmers. Let's read what is given over here. Once they were firmly established in India, the British started using many unfair means to achieve their aim of getting rich. जब एक बार वो पूरी तरह से इंडिया में एस्टेब्लिश हो गए थे, बिकॉज कि बंगाल तो उनके कंट्रोल में आ चुका था, उसके अलावा झांसी, नागपुर और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. झांसी वॉज नॉट कम्प्लीटली अंडर देयर कंट्रोल, बट दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल इट. आफ्टर द डेथ ऑफ किंग गंगाधर राव वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट रानी झांसी, शी डिड नॉट लेट देम टू ऑक्यूपाई झांसी until she was died. So उसके अलावा सब्सिडरी अलायंस की वजह से उन्होंने काफ़ी सारे किंगडम्स को एज बीइंग अ फ्रेंड उन्होंने अपना कंट्रोल में ले लिया था. तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे अनफेयर मीन्स
यूज़ करने स्टार्ट किए ताकि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रिच बना सके और इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी उसे धीरे धीरे कैप्चर कर सके. व्हाट दे डिड, द ब्रिटिश बिगिन एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स. उन्होंने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया. हाउ दे एक्सप्लॉइट द फार्मर्स? Indian farmers had to pay heavy taxes irrespective of the yield they produced. तो क्या होता था, जो एरियाज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे उन एरियाज में जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, पर उनकी जो क्रॉप्स थी उनका जो यील्ड था वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, टैक्सेस की अमाउंट उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस होती थी. अब उनके फील्ड में अगर क्रॉप्स नहीं भी होते थे तो भी उनको टैक्स देना पड़ता था. दिस इज हाउ द फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड. एज ए रिजल्ट दे बिकेम वेरी पुअर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए. अब फील्ड में क्रॉप्स हुए कि नहीं हुए, यील्ड हुआ या नहीं हुआ, बट टैक्सेस तो उनको पे ही करना पड़ता था. इफ़ दे डिड नॉट पे द टैक्स दे गेट द पनिशमेंट. तो उनको और डबल टैक्स भी देना पड़ता था या उनको उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती थी. तो उनको एक तरीके से प्रेशराइज किया जाता था हैवी टैक्सेस पे करने के लिए. और इसकी वजह से क्या होता था, वो धीरे 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 पुअर होते जा रहे थे. सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल द क्लोथ दे प्रोड्यूस्ड एट वेरी लो प्राइसेस. जो वीवर्स होते थे, जो क्लोथ्स को बनाते थे, तो यार्न से क्लोथ्स बनाते थे, तो उन वीवर्स को भी प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपना सारा का सारा क्लोथ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही सेल करें. और ये जितने ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे वो उस सारे कॉटन को या उस सारे क्लोथ को बहुत लो प्राइस में परचेज करते थे. अब उनको फोर्स किया जाता था कि वो किसी और को सेल नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उनको ब्रिटिशर्स को ही सेल करना पड़ता था. और ब्रिटिशर्स को सेल करते थे तो ब्रिटिश उनको उसके लिए लो प्राइस देते थे. द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड. जो इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. इंडिया में कॉटन का प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था वहाँ पे बहुत सारी कॉटन की मिल्स थी, बट वहाँ पर कॉटन ग्रो नहीं होता था बिकॉज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. वहाँ की ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे कॉटन ग्रो नहीं होता था, बट कॉटन मिल्स थी. अब कॉटन मिल्स है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, तो डिमांड कॉटन की है, रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन के लिए. सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में, बिकॉज कि इंडिया में बहुत अच्छा कॉटन का क्रॉप था, कॉटन का प्रोडक्शन होता था, तो वो इंडिया से जो कॉटन का रॉ मटेरियल होता था, कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में होती थी, उसे लो प्राइस में परचेज करके ब्रिटेन ले जाते थे. वहाँ की इंडस्ट्रीज में उस कॉटन से क्लोथ्स बनाए जाते थे और वही जब फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉटन क्लोथ्स वापस इंडिया में लाकर सेल किए जाते थे, बट एट ए वेरी हाई रेट. तो इट वाज अ डबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, फार्मर्स का भी और अदर्स का भी. ये एक तरीके से इंडियंस का डबल एक्सप्लॉयटेशन था. पहला, इंडिया का ही रॉ मटेरियल था जिसे लो प्राइस पर खरीदा गया, और उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनाए गए उसे इंडिया में ही सेल किया जाता था, बट एट ए हाई प्राइस. तो दोनों ही कंडीशन में इंडियंस का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था. और ये जो एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर थे वहाँ पर जो फार्मर्स होते थे या वीवर्स होते थे उन्हें अपनी खुद की कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बिड किया जाता था. उन्हें खुद की कॉटन इंडस्ट्रीज सेट नहीं करने दिया जाता था. ओके, लेट्स सी. द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री was also a victim of British greed. Britain did not grow cotton due to the cold climate, but they had big cotton textile mills which required cotton. As I told you earlier कि ब्रिटेन में जो कॉटन है वो ग्रो नहीं होता था क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत कोल्ड है, बट वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स थी जिनको कॉटन की रिक्वायरमेंट थी. सो कॉटन वॉज ब्रॉट
bought at a low price from the Indian farmers and exported to Britain. तो इंडियन फार्मर से जो कॉटन है वो कम पैसों में खरीदा जाता था और ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था. In return, cotton cloth was sent back and sold at high prices in India. और बाद में उसी कॉटन से जब क्लोथ्स बनाए जाते थे तो वो कॉटन क्लोथ्स को हाई प्राइसेस में इंडिया में सेल किया जाता था. The British also did not allow Indians to start their own mills or factories because कि ये एरियाज जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे. तो यहाँ पर जो भी लोग थे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो खुद की मिल्स या खुद की फैक्ट्री सेटअप कर सके, बिकॉज कि अगर इंडिया में ही कॉटन मिल्स या कॉटन फैक्ट्री सेटअप हो जाती तो इंडिया का कॉटन वो लोग ब्रिटेन नहीं ले जा सकते थे और वही कॉटन के बने क्लोथ्स को हाई प्राइसेस में सेल नहीं कर सकते थे. इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, मतलब जो घरेलू उद्योग थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जो फार्मर्स है उनको अल्टीमेटली अपना सारा का सारा कॉटन ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही सेल करना पड़े. और अगर इंडियंस को कॉटन क्लोथ्स की डिमांड है, कॉटन क्लोथ्स चाहिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही उन्हें परचेज करना पड़े. ओके, this exploitation led to dissatisfaction among Indians and a feeling of revolt grew in them. So इस exploitation की वजह से, this is one example, ये आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस होते थे फार्मर्स के को भी और बाकी लोगों के साथ भी बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस किए जाते थे. उनको हाई टैक्सेस, नॉट ओनली फार्मर्स बट दूसरे वर्क पे भी बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस उनसे लिए जाते थे. जो लेबरर्स होते थे उनसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क लिया जाता था और उन्हें उसके एवज में जो वेजेस हैं वो बहुत कम दिए जाते थे. तो इस सारे एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो इंडियंस थे दे वर हैविंग अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के धीरे धीरे अगेंस्ट होते जा रहे थे. एंड उन एक थिंकिंग ऑफ रिवॉल्ट कि हाँ अगेंस्ट, वी नीड टू गो टू अगेंस्ट टू द ब्रिटिशर्स, कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग्स उनके माइंड्स में ग्रो हो रही थी. सो दिस वॉज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस. ऐसे धीरे धीरे इंडियंस को एक्सप्लॉयट किया जाता था जिसकी वजह से वो जो रिवॉल्ट की फीलिंग है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. देन revolt against the British. As we know, the revolt of 1857, which is also being considered as the first independence fight of India, इंडिया की पहली इंडिपेंडेंस फाइट भी जिसे कंसीडर किया जाता है, एंड इट वॉज अ ग्रेट म्यूटिनी. वो बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ी फाइट थी, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया डिड नॉट सक्सीड इन दैट. बट अगर इंडिया उसमें सक्सीड हो जाती तो हम वो टाइम पे ही फ्री हो गए होते, 1947 तक तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं होती. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस इंडियंस वर नॉट सक्सीडेड इन दैट म्यूटिनी. वो रिवॉल्ट में इंडियंस जो है सक्सेस नहीं हुए थे. लेट्स सी हाउ इट वॉज स्टार्टेड. People in different parts of India had been protesting against the exploitative policies of the British. ब्रिटिशर्स की जो इतनी सारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया हुआ था, फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट कर दिया था, सब्सिडरी अलायंस शुरू कर दिया था, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया था, लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इंडिया की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो लोग थे वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. Then the revolt of 1857, according to historians, is an important landmark in the Indian history. Yes, जो 1857 का रिवॉल्ट है वो इंडिया की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क कहा जाता है, बिकॉज कि दिस वॉज समथिंग जिन्होंने जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हिल गए थे. ब्रिटिशर्स सक्सीड हुए थे इस म्यूटिनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट उसके बाद उनके माइंड में एक फीलिंग थी
कि अगर इंडिया के सभी लोग, पूरा का पूरा इंडिया एक साथ अगर आके खड़ा हो जाएगा, अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। सो उनके माइंड में ये चीज आ चुकी थी। दैट्स वाई इट इज कंसीडर कि ये इंडिया की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के माइंड में इंडिया के अगेंस्ट फियर स्टार्ट हो गया था कि अगर सारे इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ गैदर हो जाते हैं, तो दे हैव टू लीव इंडिया, उन्हें इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ द रिवोल्ट वाज एक्चुअली स्टार्टेड। क्योंकि लोगों के मन में फीलिंग तो पहले से थी, दे वर अगेंस्ट द पॉलिसीज, दे वर नॉट लाइक द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। जो फार्मर्स थे जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वीवर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो लोगों के मन में फीलिंग थी, दे wanted to protest against the britishers, they did not want to be under the control of britishers, but how they will become free, वो प्रोटेस्ट कैसे स्टार्ट करे, कहां से शुरू करे, सो वो शुरुआत कहां से हुई, दैट वी विल स्टडी। सी, द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे एट दैट टाइम, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियंस को अपनी आर्मी में एज अ सोल्जर अपॉइंट करते थे। तो उनको क्या लगता था कि दे आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, दे आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। बट वो क्या करते थे, जब भी उनकी कोई बैटल होती थी या कोई भी उनको डिफेंस का कुछ करना होता था, तो वो ये इंडियन आर्मी को यूज करते थे। तो इंडिया के अगेंस्ट वो इंडियंस को ही एज सोल्जर्स यूज करते थे। So the reason of the revolt was the introduction of Enfield rifle. Yes, in actually 1856, you have given info pebble also. 1856 में पहली बार ये एनफील्ड राइफल जो है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई थी। बंगाल was the main area, main region of the British, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बंगाल को ऑक्यूपाई किया था, बंगाल को कंट्रोल किया था। सो बंगाल वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। जब उन्होंने 1856 में ये राइफल्स को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया, तो उनको वहां पर कोई भी इश्यू नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने कंट्री के दूसरे एरियाज में भी ये एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया। सो yes, a rumor spread that the cartridges of the rifle were greased with the fat of cows and pigs. उस टाइम पे क्या होता था, जब ये राइफल्स होती थी ना, वो राइफल्स का जो कार्टेज है, मतलब कि जो उसके अंदर गोली है डाली जाती थी राइफल्स के अंदर, उसे उसके ऊपर का जो कवर होता था ना, उसे छील के उसके अंदर डालना होता था, और उस कवर को छीलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना होता था। हाँ, तो जो ये रूमर था कि ये जो एनफील्ड राइफल के कार्टेजेस हैं, उसको ग्रीस जो किया जाता है, चिकनास जो ग्रीस किया जाता है, वो काऊ और पिग के फैट से, काऊ और पिग की चर्बी से ग्रीस किया जाता है। सो जो कुछ इंडियंस थे या जो मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, दे वर अगेंस्ट दिस, वो उनके रिचुअल्स और कस्टम्स के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने इसका सबसे पहले इसका अगेंस्ट किया कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज, कि हम लोग ये राइफल्स को यूज नहीं करेंगे। The rumor spread that the cartridges of the rifles were greased with the fat of cows and pigs. ये रूमर था, जो ये एनफील्ड राइफल की जो कार्टेजेस थी, उसके अंदर जो बंदूक की गोलियां जो होती है ना, वो डलती हैं, तो वो जो कार्टेजेस थे, they were greased with fat of cow and pigs. The covering of these cartridges had to be bitten off before loading into the gun. ये कार्टेजेस को गन के अंदर डालने से पहले इसका जो कवर है उसे निकालना पड़ता था, एंड दैट हैज टू बी बिटन ऑफ विद द माउथ।
This meant that the soldiers had to put the cartridges in their mouth. तो उनको वो उसे मुंह में रख के छीलना होता था. This was against the religious sentiments of both Hindus and Muslim soldiers. तो ये हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था. So Indian soldiers refuses to use these rifles and revolt started. तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ये राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया. दे रिफ्यूज. तो this was how the revolt was started. I think you have heard about the Mangal Pandey. He was the first person who started this revolt. बिकॉज कि वो पहले सोल्जर जिन्होंने मना किया ही वॉज मंगल पांडे. उन्होंने सबसे पहले मना किया था कि ही वॉज द सोल्जर इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी. वो ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर थे. उन्होंने सबसे पहले मना किया था मेरठ में दैट ही विल नॉट यूज दिस दैट कार्टेज एनफील्ड राइफल, जो पहले यूज नहीं करेंगे. एंड आफ्टर हिम there were many soldiers who were with him, जिन्होंने उनके साथ उनका साथ दिया और ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. The revolt of 1857 which began at Meerut. I told you in Meerut, first of all it was Mangal Pandey who started. सबसे पहले मंगल पांडे थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था मेरठ में. उसके बाद धीरे धीरे नॉट ओनली मेरठ, इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ये पूरा का पूरा फैल गया. बहुत सारे सोल्जर्स, नॉट ओनली सोल्जर्स बट नॉन सोल्जर्स, जो फार्मर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो वीवर्स थे या अदर इंडियंस थे जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था थ्रू द ब्रिटिशर्स. सो वो सब ने ये म्यूटिनी को ज्वाइन कर लिया धीरे धीरे, because they all were having the feeling to protest against the Britishers, but they were not having chance. उनके मन में फीलिंग तो थी कि उनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना है, दे वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट दे डोंट गेट एनी वे. सो दिस वाज द वे. ये वो वे बना जिसके थ्रू लोगों का जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो बाहर आया. एंड स्लोली मेरठ से स्टार्ट होके ये पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया. पूरा के पूरा लगभग पूरा नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया. ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए, उनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया. जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको यूज़ करना बंद कर दिया. एंड दिस इज हाउ दे गेट अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए. इट वॉज ज्वाइंड बाय फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड द अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. नॉट ओनली सोल्जर्स, फार्मर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, वीवर्स थे, लेबरर्स थे या जो अदर सोसाइटीज़ थी, उन्होंने भी धीरे धीरे इसे ज्वाइन किया. Indian soldiers overthrew their superiors and marched to Delhi to crown Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, as their king. As because at that time India was under the control of Mughals. India में Mughals का कंट्रोल था, पूरा का पूरा Mughals का शासन था. तो इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, उनके जो सुपीरियर्स, उनके जो कमांडर्स थे, उन्होंने उनकी कमांड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. एंड दे मूव टुवर्ड्स दिल्ली बिकॉज दिल्ली वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल्स. सो दे मूव टुवर्ड्स दिल्ली टू क्राउन बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. वो लास्ट मुगल एम्परर थे. सो दे कंसीडर बहादुर शाह जफर एज देयर किंग एंड दे डिनाइड to take any command from the Britishers. उन्होंने डिनाई किया कि वो ब्रिटिशर से कोई कमांड नहीं लेंगे. एंड दे डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज देयर किंग. इंडियन रूलर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह joined the rebels.
सो इस म्यूटिनी को एज बिकॉज बहुत सारे जो हमारे थे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये म्यूटिनी को ज्वाइन किया, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अदर्स वर देयर जिन्होंने ये म्यूटिनी को ज्वाइन किया. Rani Lakshmibai was martyred and Nana Sahib continued the battle. Uh, you all have heard about Rani Lakshmibai. She was died in the battlefield, and till her last breath, she was fighting against the Britishers. अपनी लास्ट ब्रीथ तक वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रही थी. बट आफ्टर हर डेथ Britishers tried to control Jhansi, and then Nana Sahib, who was like her brother. So Nana Sahib, उन्होंने ये बैटल, ये म्यूटिनी को कंटिन्यू किया आफ्टर रानी लक्ष्मी बाई. The revolt continued. See, you have given the picture of Bahadur Shah Zafar. The revolt continued for 2 years before it was crushed by the British. ये रिवोल्ट 2 सालों तक चला. From 1857 it was started. So it was continued for 2 years before it was totally crushed by the British. जब तक कि ब्रिटिशर्स ने इसे पूरी तरह क्रश नहीं कर दिया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया. Now we will discuss about the reasons of failure of this mutiny. ये बैटल, ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ? Why Indians were not succeeded in this revolt? Those reasons we will discuss now. Okay. The mutiny failed because it lacked proper leadership and planning. तो इसकी फेलियर का पहला रीजन क्या था? It was failed because of lacked proper leadership and planning. बिकॉज कि इंस्टेंटली ये स्टार्ट हो गया था. इसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये म्यूटिनी जो है वो क्रश हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई. द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेन्ड सोल्जर्स एंड सुपीरियर वेपन्स. सेकेंड रीजन क्या था? ब्रिटिशर्स के पास जो सोल्जर्स थे वो इंडियन सोल्जर से ज्यादा ट्रेंड थे और उनके वेपन्स भी इंडियन से ज्यादा सुपीरियर थे. एज बिकॉज की म्यूटिनी में सोल्जर्स भी थे, बट सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, सोल्जर्स के अलावा फार्मर्स भी थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, वीवर्स थे, लेबरर्स थे, अदर सोसाइटीज थी, या नॉर्मल पीपल्स ने भी ये म्यूटिनी लड़ी थी. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके तो सिर्फ सोल्जर्स थे, उनके थोड़े ना कंट्री पीपल यहाँ पे लड़ने के लिए आए थे. तो उनके सोल्जर्स थे वो ज्यादा ट्रेंड थे और उनके वेपन्स भी सुपीरियर थे. सो दिस वाज द सेकेंड रीजन. थर्ड रीजन, some Indian rulers helped the British. Okay, the main reason of uh, the failure of India was that the few Indian rulers helped the British. सबसे बड़ा रीजन, ठीक है प्लानिंग कम थी, लीडरशिप अच्छा नहीं था, या हम इंडियंस के पास सुपीरियर ट्रेंड दैट कमांडर्स नहीं थे, सोल्जर्स नहीं थे, या अच्छे वेपन्स नहीं थे, फिर भी इंडिया can win. But the main reason of the unsuccess of India was that a few Indian rulers, they helped the Britishers. कुछ इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प की अगेंस्ट द इंडियंस. खुद इंडियंस होके उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट हेल्प की, और ये इंडिया की डिफीटिंग का सबसे बड़ा रीजन था. इफ इट वाज नॉट देयर ना, इंडिया विंस दैट टाइम, इंडिया won that time during the revolt of 1857. चलिए नेक्स्ट.
Bahadur Shah Zafar was arrested and exiled to Burma, which is now known as Myanmar, where he breathed his last. Bahadur Shah Zafar, who was the last Mughal ruler and who was crowned as the king of India. So, after this mutiny, he was captured, he was arrested, and he was exiled to Burma. उन्हें इंडिया से दूर, the neighboring country of India, Burma, which is now known as Myanmar, वहाँ पर भेज दिया गया, where he breathed his last and where अपनी आखिरी सांस तक वो वहीं पर रहे. And his two sons were killed. उनके दो बेटे थे जिन्हें मार दिया गया. And this becomes the end of Mughal Empire. This was how the Mughal Empire was end. About the Mughal Empire, you will study in your 7th standard. आप अपने 7th standard में मुगल एम्पायर के बारे में completely पढ़ेंगे, but right now we are just discussing about the first revolt of freedom. So this was how the once mighty Mughal Empire to an end. इस तरह से मुगल एम्पायर का एंड हुआ. The revolt was a turning point in the Indian history. ये जो रिवोल्ट है वो इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था. The rule of the East India Company ended. इसके पहले क्या होता था, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स के तरफ से यहाँ आई थी, सो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था. बट आफ्टर दिस रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया. नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. अब इंडिया ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी. आफ्टर द रिवोल्ट Indians realized that if the whole of India had been united, the British would have never succeeded. ये रिवोल्ट के फिनिश हो जाने के बाद इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि अगर पूरा का पूरा इंडिया एक साथ खड़ा हो जाता तो ब्रिटिश कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते. एंड दैट इज ट्रू. इन 1947 वी गेट फ्रीडम. हमें फ्रीडम मिली, बट हाउ? बिकॉज एट दैट टाइम द होल इंडिया वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो वी गेट द फ्रीडम. बट अगर यही चीज 1857 के रिवॉल्ट के टाइम होती, ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही ये रिवॉल्ट हुआ. ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में इसका बहुत कम पार्ट था. बट अगर पूरा इंडिया एक साथ खड़ा हो जाता, सो ब्रिटिश वर नॉट एबल टू सक्सीड इंडिया. ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी नहीं इंडिया को सक्सीड कर पाते. दे हैव टू बी बैक आउट फ्रॉम इंडिया. उन्हें इंडिया से जाना ही पड़ता. बट what we can say, चलिए, in this video we have discussed how the Britishers exploit the Indians, कि इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था. Then how the revolt against the Britishers was started, which was also considered as the first freedom fight of India. वो कैसे स्टार्ट हुई, फाइट कैसे बाकी सोल्जर्स या सबने फाइट को ज्वाइन किया. Then it was destroyed, and what were the main reasons behind this destruction, कि ये जो बैटल डिस्ट्रॉय हुई उसके पीछे के मेन रीजंस क्या थे, that we have discussed. Till now we have completed our chapter number 3, that is coming of the British and the revolt of 1857. चलिए, we will meet in the next video very soon. Till then, stay safe, stay healthy, and bye.